Well, students, good morning. Today we are going to learn integration, concept of integration of plus 2 mathematics. First of all, we have learned so many operations before doing this integration. We know the operation addition and its reverse processes, subtraction. Similarly, multiplication and reverse of multiplication is division. Same is the case with integration and differentiation. I mean to say that differentiation का जो इन्वर्स है that is integration. Now integration is also known as antiderivative. First time basic of integration is it is the reverse process of differentiation. Let us try to understand here. Integrals, I mean to say integration is a process in which we do and find antiderivatives by following the rules, some rules and elementary procedures, operations on different integrations. First of all, try to understand indefinite integrals. Integrals are of two types, definite and indefinite. In this chapter, we will start indefinite integrals. Indefinite integrals इंटीग्रेशन का ही पार्ट है. इंटीग्रेशन को समझना है हमें. सबसे पहले इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, एंड इज देयरफॉर also called anti-differentiation. The function thus obtained is known as antiderivative or primitive or integral of given function. Definition एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं इसकी. इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इसको हम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. The function f(x) thus obtained is known as antiderivative or primitive or integral of that function. These three are one and same thing. Now, indefinite integrals. Now, here is the definition of indefinite integrals. For understanding this, let f of x be a function. Then the collection of all its primitives or antiderivatives is called the indefinite integrals. In indefinite integrals of f of x, and is oftenly denoted by, this is the sign of integral f of x dx. Integration as inverse of differentiation. For example, if derivative of d over dx means derivative of some function phi x say is f of x, then the integration of this function f of x dx will be equal to phi x plus c, where c is the constant of integration. इसको अभी हम समझेंगे कि कैसे ये constant of integration कैसे introduce होता है. First of all, try to understand the definitions and the terms involved in this definition. Here, symbol f of x, this f of x is integrand, known as integrand. This is called integrand. Fx dx is oftenly known as element of integration. और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे d over dx over fx करते थे डेरिवेटिव में. तो इन डेरिवेटिव में क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. लिखेंगे इसको इस तरह से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. दिस सिंबल इज फॉर इंटीग्रल. एंड फाई एक्स जिसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स था, दिस इज आवर एंटी डेरिवेटिव, यानी कि ये इसकी इंटीग्रल वैल्यू है. एंटी डेरिवेटिव बोल लो और प्रिमिटिव बोल लो और इंटीग्रल बोल लो इस फंक्शन का.
फॉर एग्जाम्पल से इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? राइट हियर साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos of x. It is clear, derivative of sin x is cos of x, we know from our previous topic. Also derivative of sin x plus c, c is some constant, real numbers, there are so many real numbers, infinite real numbers we have. So ddx of sin x plus c is also cos of x, because differentiation of c is constant term is 0. This shows that if we want to find the integral of or antiderivative or primitive, that is phi x, this will be equal to sin x plus c, sin x plus c. Here f of x is cos of x. So then integral of cos theta d theta will be equal to sin theta plus c. Here integration is with respect to theta, or integration of in terms of x dx, cos x dx, this will be equal to sin of x plus some constant of integration. Integration of some functions, here I have written the formulas how we can apply these in our so these when we have to solve the integration. As integration is the reverse of differentiation, so एक साइड मैंने ये डिफरेंशिएशन वाले सम लिखे, डिफरेंशिएशन से निकाले, और दूसरी तरफ उसकी इंटीग्रेशन बताई गई है. हियर डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, it is known that ddx of x is 1. This means that integration of 1 is x plus c, where c is some constant. ये जितने भी indefinite integrals हैं इसमें constant terms साथ में रहेगी. आगे इसका मैं ज्योमेट्रिकल रिमेडिंग भी बताऊंगा, उसमें तुम लोगों का ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Also derivative of x raised to power n plus 1 over n plus 1 is x रेज टू पावर n. इसको तुम लोग निकाल के देख सकते हो इसका डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1. सो इट विल बिकम x रेज टू पावर n. अगर डेरिवेटिव x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का x रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस x रेज टू पावर n dx विल बी इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c. कंडीशन क्या है इसमें? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1. अगर ये -1 होता है n, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए कंडीशन भी है यहाँ पर. तो x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. इसमें डिग्री जो है x की वो +1 हो जाती है, बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना. और जहाँ की डिफरेंशिएशन में क्या होता था, इस फंक्शन की डिग्री जो थी वो 1 माइनस हो जाती थी, इसमें बढ़ रही है n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन. सिमिलरली सम अदर फार्मूलाज आर हियर. डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ mod x इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओवर x. डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ mod x इज ऑलवेज 1 over x. Therefore integral of 1 over x dx will be equal to log of mod of x plus c. C is arbitrary constant of integration. Similarly exponential का d dx of ex equals to ex, then integral of ex will also be equal to ex. d dx of a raised to power x over log a रेज टू पावर x होता है, तो a रेज टू पावर x का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये a रेज टू पावर x ओवर log a प्लस c आएगी. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लो थोड़े. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ कोस x अगर माइनस साइन x होता है तो साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस c होगी, उल्टा है उसका. डेरिवेटिव ऑफ साइन x अगर कोस x है तो कोस x की इंटीग्रेशन साइन x प्लस c होगी.
सिमिलरली सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स है. देन इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स विल बी, जिसका ये डेरिवेटिव था, दैट इज सीकेंट एक्स प्लस सी. सेम इज द केस विद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है. तो कोसेक एक्स कोट एक्स की अगर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोसिकेंट एक्स आएगा. सिमिलरली वी नो दैट डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज सीकेंट स्क्वेयर एक्स, secant square x, ddx of tan x is secant square x. So integral of secant square x dx is tan x plus c. ऐसे और भी बहुत सारे फार्मूले, कुछ यहाँ मैंने लिखे हैं, कुछ तुम लोगों ने खुद लिखने हैं. ये tan x के बाद और भी यहाँ पर तुम्हारी बुक में भी फार्मूले तुम लोगों को मिल जाएंगे. इनकी हेल्प से ही हमने आगे क्वेश्चन निकालने हैं. आगे देखो, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स का लिख लिया तुम लोगों ने. सीकेंट स्क्वेयर एक्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोट एक्स किसके इक्वल होता है? जैसे टेन एक्स लिखा था ना, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोट एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोट एक्स इज कोसेक स्क्वेयर एक्स. ये होता है कोसेक स्क्वेयर एक्स. तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोसेक स्क्वेयर एक्स जो है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? माइनस कोट एक्स प्लस सी. उल्टा करना है इसको, माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ऑफ. अब डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स, ये कोसेक एक्स का लिख दिया था ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है. तो यहाँ हमने निकाल लिया था, ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी. अब कुछ इन्वर्स वाले लिखते हैं. नेक्स्ट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले लिख लो. डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब अगर हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल और प्रिमिटिव, दिस विल बी किसका? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी एक्स यहाँ लिखा जाएगा. ये किसके इक्वल आएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. ऑन द सेम वे डी डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स लिख लो. यहाँ सिर्फ माइनस का फर्क होता है, तो ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर. तो ऐसे तुम लोग इसकी इंटीग्रेशन भी बना सकते हो. वैसे टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर. तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा. सिमिलरली कोट एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का, सीकेंड इनवर्स एक्स का, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का, ये सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले तुम लोगों को नोट करने हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स. ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं इनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. इनडेफिनिट इंटीग्रल की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से पहले थोड़ा सा एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. अब देखिए, डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एफ इज ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे निकाली जाती थी. और डिफरेंशिएशन हमें क्या बताती थी कि उस कर्व के, उस ग्राफ के टेंजेंट्स का स्लोप. ये डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि कोई भी कर्व हो उसके एक पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा विद एक्स एक्सिस, वो उसका फिजिकल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लेकर चलते थे. अब इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रल. इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव two problems
Number one is the problem of finding a function whenever its derivative is given. When its derivative is given, then how we can find the function. And the second problem is finding the area bounded by the graph. एक ग्राफ बाउंडेड ग्राफ है, उसका एरिया फाइंड करने के लिए भी हम कैसे उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. These two problems arises to for these two problems we have opted two types of integration. First one is indefinite integration integrals and another one is definite integrals. In definite integrals limits are given, upper limit and lower limit of integral sign is given, while in indefinite integrals only constant values are there. So let's try to understand the geometrical interpretation of indefinite integrals. Indefinite integrals means we have here curves for the y equal to x square, y equals to x square. When y equal to x square, if we plot a curve, then it is a upward parabola. This will passes through origin, y equal to x square, y equal to x square plus 1. This curve is also representing parabola but passes through at x equal y equal to 1, x square plus 1, and this is the graph for y equal to x square plus 2. Similarly y equal to यहाँ पर -1 है, y equal to x square -1 और ये -2 है नीचे को, तो this curve is for y equal to x square -2. We have written here, we are drawn here curves for y equal to x square, y equal to x square plus 1, y equal to x square plus 2, y equal to x square -1, y equal to x square -2 and so on. We have a family of curves. इस फैमिली में क्या है, कर्व्स की क्या इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है, कहाँ पर ये फैमिली के अलग अलग हो रहे हैं. इसमें सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ आर डिफर. जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट रियल नंबर्स जो हैं, दीज आर डिफरिंग and x square remains same in all these curves, x square plus 2, x square plus 1 and so on. So when we draw these type of curves, family of the such curves, and then the tangents to all the curves, कहाँ पर टेंजेंट लेना है इनका, at the point of intersection of curve and a perpendicular line drawn at some distance parallel to axis. Here we have written y equal to f of c of x, where c is any real number at the points of the intersection of the curves by the line x equal to, ये लाल लाइन से मैंने दिखा रखा है, रेड लाइन से, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं सारे, ये लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन, लाइन एंड कर्व. दिस इज द लाइन एट x इक्वल टू से a से, इक्वेशन ऑफ graph of line x equal to a, this line, and these are tangents at the point of intersection of each curve with this line. The intersection of the curves by the line x equal to a, where a is also real number, these tangents, all tangents are parallel, all tangents are parallel. What does this shows? The equation statement is written as इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, इसको वाई भी बोल दिया जाता है. हियर रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ कर्व्स. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत सारी कर्व्स होती हैं जिनका इंटीग्रेशन वैल्यू या सेम आती है, रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स. ये एक नहीं है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स प्लस सी जिसकी वैल्यू आ रही है, दिस इज़ अ फैमिली ऑफ कर्व्स. मतलब इसमें मोर देन वन जो है वो आ रहे हैं हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा है, यूनिकनेस नहीं है इसमें, मोर देन वन है. अब सम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम. ये इंटीग्रेशन के लिए था कि इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है.
जैसे डिफरेंशिएशन की बताई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स। क्या कहा मैंने? डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर और इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो दे कैंसल्ड आउट। कैंसल होने के बाद what remains? Only f of x is remaining. Since differentiation and integration are inverse processes, therefore differentiation and integration का साइन एक साथ आने पर वो कैंसिल हो जाते हैं और जो फंक्शन है वो बचा हुआ फंक्शन ही हमारे पास इसका आंसर आएगा। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्योंकि ये एफ डैश एक्स डी एक्स है, ये एफ डैश एक्स क्या है? एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लीनियर प्रॉपर्टी है। इसमें जैसे डिफरेंशिएशन में थी सेम वैसी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, इसको लीनियरिटी भी बोलते हैं। सिमिलरली सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रल ऑफ के ऑफ एफ एक्स डी एक्स, देन इट कैन बी रिटन एज, के को आउट कर लो इंटीग्रेशन के साइन के बाद जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, और आगे इंटीग्रल ऑफ साइन लगा के एफ एक्स डी एक्स लिख दो। अब इन दोनों की हेल्प से, दोनों ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम इसको n तक भी ले जा सकते हैं, n टर्म्स तक, k1f1x प्लस k2f2x अप टू kn(f(n)x), इन सभी की इंटीग्रेशन कंबाइन है। तो अब इसको हम अलग अलग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे पहले फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया, प्लस k2, सेकेंड फंक्शन प्लस सोन, लास्ट में प्लस kn, और nth फंक्शन इसको हमने यहाँ लिख दिया f(n)x dx। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव है इंडेफिनिट इंटीग्रल, बट है क्या उनका? डेरिवेटिव्स आर सेम, लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, तो नेचुरली उनकी एक ही फैमिली बनेगी, कर्व्स की भी सेम होगी। इसको हमने थोड़ा सा और एलेबोरेट किया है। तो लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी एक्स आर इक्वल। यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाया है, और इसी स्टेप को फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है, इसको इस साइड ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा ना। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, डी डी एक्स तो ले लिया, साथ में इंटीग्रल भी ले लिया ये पूरा। इसको क्या किया? सिंपल मैथमेटिक्स का स्टेप है ये, इसको इस तरफ लेकर नेगेटिव करके ये स्टेप बन गया इक्वल्स टू जीरो। जैसे ये इक्वल टू जीरो किया, अब क्या था? हैंस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इक्वल टू सी। ये क्यों हुआ ऐसा? अगर डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन इज जीरो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। तो यहाँ लिखा है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये पूरा फंक्शन मान लो। तो अगर इसका डेरिवेटिव जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई दिस इज जीरो, इसका मतलब ये हुआ वाई दिस इंटीग्रेंड जो है, ये अंदर वाली टर्म जो है डेरिवेटिव की, ये सी के इक्वल क्यों लिखी? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का ही डेरिवेटिव जीरो होता है। इसको पॉइंट को ध्यान से तुम लोगों ने नोट करना है, कहाँ से आया, वाई इट इज़ सो। नेक्स्ट, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाओगे तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। सो द फैमिली ऑफ कर्व्स, दो फैमिलीज बन गई इसमें। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन, वेयर सी वन इज बिलोंगिंग टू आर, इक्वल टू दूसरी फैमिली और ऑफ कर्व क्या है? जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू,
where C2 also belonging to R. These both are identical. तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी. अगर टू इंडेफिनेट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव, एक ही डेरिवेटिव हो, सेम डेरिवेटिव हो, इक्वल डेरिवेटिव हो, तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स ऑब्टेंड होती है वो भी आइडेंटिकल होती है. अब कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं. राइट द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. अब क्या करना है, हमें इनके एंटी डेरिवेटिव निकालने हैं. एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि cos 2x का अगर एंटी डेरिवेटिव पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि cos 2x डेरिवेटिव किसका है. cos 2x डेरिवेटिव sin 2x. देखो यहाँ पर हमने आइडिया लगाया कि cos 2x डेरिवेटिव जो है इसका मतलब sin 2 एंटी डेरिवेटिव है ना इसका. राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. cos 2x का एंटी डेरिवेटिव लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये डेरिवेटिव किसका है. तो इसके लिए हमने क्या किया, डी डी एक्स ऑफ साइन 2x. वी नो दैट साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो कोस एक्स होती है. वहाँ से हमने ये स्टेप लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज कोस 2x मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ 2x जो कि 2 आता है, 2 कोस 2x. और कोस 2x किसके इक्वल आ गया, 1/2 को इस तरफ ले गए, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x या डेरिवेटिव ऑफ 1/2 साइन 2x. इसका क्या मतलब हुआ कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, ये वाली जो चीज़ आई एंटी डेरिवेटिव, तो इसको हम बोलेंगे. सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज 1/2 साइन 2x. द सेम वे यू कैन फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ साइन 2x. इसी तरीके से साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ cos 2x लिखोगे इसकी जगह, फिर इसको ऐसे सोल्व करोगे तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है. नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन और उसी फंक्शन की इंटीग्रेशन में पॉइंट्स क्या क्या तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं. नंबर 1, बोथ आर ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. सभी फंक्शन पे ऑपरेट होती हैं ये, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी. हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड सो ऑन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन. ये सभी, ये दोनों इन्हीं फंक्शन पे लगती हैं. सेकंड पॉइंट क्या है कंपैरिजन का, बोथ सेटिस्फाइज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी. लीनियरिटी प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने इसमें, यहाँ पीछे लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें प्रॉपर्टी नंबर, देखो ये वाली, ये फोर्थ वाली देख लो. इंटीग्रेशन अलग अलग हो, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस. मतलब इकट्ठे फंक्शंस की इंटीग्रेशन को हम उनको सेपरेट करके भी अलग अलग करके लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रॉपर्टी. तो ये दोनों में पॉसिबल है, डेरिवेटिव में भी और डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी. थर्ड वन इज डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज़ यूनिक. उसकी एक ही वैल्यू आती है, बट इंटीग्रेशन नॉट यूनिक, क्योंकि इंटीग्रेशन में कर्व, फैमिली की कर्व बनती है, क्योंकि वो उसमें कांस्टेंट वैल्यू वेरी करती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ज़्यादा होते हैं. जैसे हमने कर्व ली थी, इंटीग्रेशन वैल्यू सेम थी उसकी बट नॉट यूनिक. एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन बताई थी ना तुम लोगों को, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड सो ऑन. सो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज़ यूनिक बट इंटीग्रेशन इज़ नॉट यूनिक, ये वेरी करती है. फिफ्थ पॉइंट इज़ इन डिफरेंशिएशन ऑफ पॉली फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन, जो पावर वाला फार्मूला है, डिग्री रिड्यूसेस बाय 1. उसमें डिग्री कम होती है एक, क्योंकि x रेज टू पावर n है तो उसकी डिग्री हो जाएगी n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1 इन डिफरेंशिएशन. वाइल इन इंटीग्रेशन डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, x रेज टू पावर n है तो उसकी डिग्री हो जाएगी इंटीग्रेशन के बाद x रेज टू पावर n+1 ओवर n+1, यानी कि 1 से डिग्री इंक्रीज होती है. ये दोनों में फंक्शन है एक बेसिक. सिक्स्थ पॉइंट क्या है, दोनों में डिफरेंस है. सिक्स्थ पॉइंट है डेरिवेटिव कैन बी फाउंड एट ए पॉइंट. एक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे तुम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखा है. बट इंटीग्रल कैन बी फाउंड इन एन इंटरवल.
बट जो इंटीग्रल है उसके साथ ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में वो किसी इंटरवल में ही निकाली जाएंगी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या था? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट ए पॉइंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट ए पॉइंट, व्हाइल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, पैरेलल टू ईच अदर हैविंग पैरेलल टेंजेंट्स एट इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स विद लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा, अगर वाई एक्सिस में लोगे तुम लोग वेरिएबल वाई लोगे तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगा लाइन जो है। 8th पॉइंट इज द डेरिवेटिव इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग फिजिकल क्वांटिटीज लाइक वेलोसिटी व्हेन डिस्टेंस एंड टाइम इज गिवन, वाइल इंटीग्रेशन उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस व्हेन वेलोसिटी एट टाइम टी इज गिवन। ये हमारे पास आ गया कंपैरिजन बिटवीन दिस टू, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6, राइट हियर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वी कैन solve this by using formula. Question number 6 is integral of 4 e raised to power 3x plus 1 dx. Find the following integrals. इसको तुम लोगों ने निकालना है। तो इसमें क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसमें जाओगे, सबसे पहले इसको लीनियरिटी के हिसाब से लिख लेते हैं। 4 e रेज टू पावर 3x dx अलग अलग करके लिखो, इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, दोनों टर्म्स अलग अलग करके लिख ली, लीनियरिटी और प्रॉपर्टी लग गई इंटीग्रेशन की। अब यहाँ से स्केलर मल्टीपल इसको बाहर लिख लेते हैं। 4 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर 3x dx प्लस 1 dx की इंटीग्रेशन क्या बताई थी, x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, ये चला हुआ है हमारा, x प्लस c कर लो, c1 सम कांस्टेंट। ठीक है, एक का निकाल लिया हमने, x प्लस c1 इज सम कांस्टेंट। नाउ अब हमें किसकी निकालनी है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 3x, ये क्या होगी, e रेज टू पावर 3x ओवर डेरिवेटिव ऑफ 3x, ऐसे निकालते हैं इसको इंटीग्रेशन को, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव आगे लिखते थे मल्टीप्लाई में, इसमें उल्टा चलना है इंटीग्रेशन में, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है 3x का एंड तक इसको सॉल्व करना है जब तक इसका निकलता जाए, प्लस सम कांस्टेंट c2 प्लस आ गया x प्लस c1, ये क्लोज कर दिया हमने। अब यहाँ से देखो, ये 4 हमारा आ गया बाहर, मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू पावर 3x ओवर 3x की डेरिवेटिव क्या होता है 3 प्लस x प्लस c1 प्लस c2। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनका एक ही बना देते हैं कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा लास्ट में 4/3 e रेज टू पावर 3x प्लस x प्लस c1 c2 की जगह c लिख देते हैं, वेयर दिस c इज़ द सम ऑफ दीज टू कांस्टेंट्स, जो भी आएंगे एक c लिख देना, बस यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको i से रिप्रेजेंट कर दो, लेट i इक्वल टू दिस, ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। अब i से रिप्रेजेंट करने के बाद मल्टीप्लाई इट, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी
एक पावर बढ़ जाएगी n+1 फार्मूला। x⁻n की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे तुम लोगों को, लर्न करोगे तभी आएगा ये n+1/n+1 लर्न करने पड़ेंगे और साथ में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आते जाएंगे ये सम। तो x² की हमने डिफरेंशिएशन निकाल ली, इंटीग्रेशन निकाल ली, x³/3 -1 की इंटीग्रेशन x और प्लस कर देना एक ही बार में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ बार बार लिखे थे ना एक बार बताने के लिए, अब तुम लोगों ने इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज 8th, इंटीग्रल ऑफ ax² + bx + c dx। अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये 8th सम है, तो इसको लिख लेंगे लेट आई, वैसे ही आई करके लिख लिया इसको, ax² + bx + c dx। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस इंटीग्रेंड को हम, ये जो इंटीग्रेंड बोलते हैं इसको, अलग अलग करके लिखेंगे। इंटीग्रल ऑफ ax² dx, हर एक टर्म को अलग अलग कर देंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx जो प्रॉपर्टी है इसकी, प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx। अब देखिए ax² dx का इंटीग्रेशन क्या होगी, a इज़ कॉमन, इसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ x² dx प्लस b स्केलर कॉमन नहीं, सॉरी स्केलर मल्टीपल था, b x dx यहाँ कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म में, और c इज़ कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा 1dx। ये ध्यान रखना है इसको। डिफरेंशिएशन में तो ये 0 हो जाती थी ना, बट देखो कांस्टेंट वैल्यू की भी इंटीग्रेशन जो है वो 0 नहीं होती। ये आ गया हमारे पास ax² dx, a इंटीग्रल ऑफ x² dx, पावर फार्मूला लगाया xn+1/n+1, तो ये बन जाएगा x3/3 प्लस b इंटू x dx का, x की इंटीग्रेशन फार्मूला पावर ऐड हो जाएगी 1 + 1 2/2 x⁻n+1/n+1, पहला ही फार्मूला चल रहा है, प्लस c × 1dx इज x, और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना, क्योंकि c यहाँ ऑलरेडी है तो इसको तुम लोग k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस k, वेयर k is constant of integration, where k is constant of integration। नेक्स्ट सम करते हैं इसका एक और, 9th सम, इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस e⁻x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ट्राई, तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी, एक तो आ जाएगी यहाँ से, 2 को ऐसे लिख लेता हूँ, एक स्टेप और शॉर्ट कर देता हूँ, प्लस ex dx, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × x³/3 प्लस e⁻x का e⁻x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना, सोल्व। ऐसे तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो, डिफरेंट जो भी बुक की एक्सरसाइज में है उनको तुम लोग ट्राई करोगे तो ये आराम से निकलते जाएंगे। dx, इसमें क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को, पहले इसका स्क्वायर कर लो, इंटीग्रेशन ये जो आगे सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद इसका निकालते हैं। √x² का कितना हो जाएगा, x + 1/x a² + b² -2ab जब करोगे तो ये -2 आ जाएगा। देखो ऐसे, यह मैंने क्या किया, a - b² का फार्मूला लगा दिया, उससे ये टर्म बन गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट किया, x dx अलग अलग कर लिया पहले इसको, 1/x dx -2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx ऐसे लिख लिया। अब x का क्या इंटीग्रल होता है, x²/2 प्लस 1/x log ऑफ mod ऑफ x -2 और 1 dx का क्या होगा, x + c। In this way we can solve so many questions of this type by using this power formula and other formulas. So thank you। आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट जो सम्स हैं
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें।